How are you children today? Are you okay? Hmm. Let us discuss the story Flying Together. First we revise the story, then we will read the next paragraphs, okay? There was a tree in the deep forest and so many geese lived on it. There was one wise old bird. He was very wise, having intelligence. One day, the old bird saw a creeper near the root of the big tree, and he told them that please try to destroy it. But nobody wanted to destroy it. The time slowly passed away, and the creeper just climbed on a tree, just climbed on a tree, and it became stronger and stronger. One day, when all the geese went for the searching of food and returned home, before they returned home, a hunter came and spread a net on the tree with the help of that creeper which was grown up. When they came, they just trapped in the net and they called for help. That time, what happened? We just see in the next paragraph, okay? Now, don't make a fuss now, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened tomorrow. Tomorrow morning in the Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. Whoa. We were foolish, wept the birds. We are very sorry we did not listen to you. Please tell us what to do. Then listen carefully, replied the wise bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down. Collect the dead birds and take them home. Then the last of us has been thrown down. We must quickly get up and fly away. In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. Are all dead. He muttered to himself. He muttered to himself. He threw them out of the net one by one. The birds lay still until the last one had been thrown down. Then all at once they got up and flapped their wings
and flew away. The hunter was taken by surprise. From the top of the tree, he watched all the geese fly away. तो बच्चों, ये तो हमारी रीडिंग रही. मुझे भी देख के बहुत छोटा छोटा है तो देख के पढ़ना पड़ता है, ठीक है. What happened? Just I tell you in Hindi. Don't make a fuss now. अब जो हुआ सो हुआ, घबराने की बात नहीं है. Said the wise old bird. और वो जो बूढ़ा दिमागदार पक्षी था उसने कहा, Long ago I told to destroy the creeper, but you did not. मैंने तुमसे कहा था कि इसको काट दो, इसको उखाड़ दो, लेकिन तुमने मानी ही नहीं. किसने नहीं मानी बताओ? हाँ, गीज ने नहीं मानी. नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड टुमारो मॉर्निंग. द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल. अब जो वो शिकारी आएगा, हंटर, और हमें सबको जो है, और वो कब आएगा बताओ? सुबह आएगा कि शाम को आएगा? वो शाम को लगा के गया था इन द इवनिंग, और वो सुबह आएगा. उसने क्या सोच रखा होगा? उनने कि बहुत सारे गीस जो हैं उसमें जाल में फंसे हुए मिलेंगे. सुबह आएगा वो तो. विल कम बैक एंड किल अस ऑल. और आएगा और हमें जो है निकालेगा, काटेगा, टकाटक मार डालेगा हमें. वी वर फुलिश वेप द बर्ड्स. अब उन्होंने अपनी गलती मानी. किन्होंने? वो जो है पक्षियों ने गलती मान ली. वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन यू. अरे भाई, हम अपनी गलती मानते हैं, हमने आपकी बात नहीं सुनी. वी वर फुलिश वेप द बर्ड्स. अरे हम बड़े बेवकूफ थे. अरे हमें माफ करो. Then listen carefully, replied the wise bird. अब फिर उसने कहा, देखो भैया, ध्यान से सुनो, क्या बात है. When the hunter comes, you must all pretend to dead. जैसे ही वो जो शिकारी है वो तुम्हारे पास आए तो तुम मरने की एक्टिंग कर लेना. Pretend to be dead. और जस्ट लाइज स्टिल. और ऐसे ही पड़े रहना, कोई यूं आंखें खोल के मत देखना, या इधर उधर फड़ाना मत, नहीं तो पकड़ लेगा वो सबको. द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स. अपन को पता है कि वो जो मरे हुए पक्षी होते हैं उनको हंटर तो लेके जाता नहीं है. ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड. इट विल देन will not want to dead birds be easy for him to climb down. और जैसे वो फेंकता रहेगा फिर उसके वो तो नीचे उतर आएगा. तो लेकिन हमें क्या करना है? collect the dead birds and take them home. वो मरे हुओं को जो है वो कलेक्ट करेगा और लेके जाएगा. then the last of us has been thrown down. अब जब एक एक करके वो सारों को फेंकना शुरू कर देगा, तो जब लास्ट बर्ड को फेंक दे, कहाँ फेंक दे? नीचे. ठीक है, तो उसमें क्या करना है? हैज बीन थ्रोन डाउन, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे. अब फिर हम जब सब एक एक करके सारे बर्ड वो फेंक दे, तो हमें फिर अपनी आंखें खोलनी है और तुरंत जाके और क्या करना है? तुरंत जाके उसके ऊपर अपने पैर वहां से उठने हैं. अपन मतलब सारे पक्षियों को अपने पर फड़फड़ाने हैं और उड़ जाना है. ठीक है? ठीक है. इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप. ही लुक्ड एट ऑल एंड गीज इन द नेट. वो अब सुबह जो है वो शिकारी वहां आ गया. उसने देखा
क्या देखा उसने? दे आर ऑल डेड, अरे सारे मर गए भैया। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बातें करने लगा, मतलब थोड़ा बड़बड़ाने लगा। क्या बड़बड़ाने लगा वो? ही थ्रू दैम आउट ऑफ द नेट वन बाई वन। अब उसने एक एक करके चेक कर करके, अरे ये भी मर गया, चलो ये भी मर गया, चलो ये भी मर गया, चलो सारे जो है जो वो गीस थे उनको फेंक दिया। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप्ड देयर विंग्स। अब जब सारे फेंक दिए तो वो सारों ने अपने जो है पंख फड़फड़ाए और क्या किया? फ्लाई अवे, फ्लू अवे, और वो उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाई सरप्राइज। अरे के तेरी का भैया, सारे के सारे मेरे को बेवकूफ बना के उड़ गए। नहीं, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीस फ्लाई अवे। और वो जो है टॉप ऑफ द ट्री से देखता है कि सारे वो जो है पक्षी जो गीस हैं वो उड़ गए। बच्चों अब बात समझ में आ रही है ना? अच्छा ये बताओ, अब ये तो लेसन पढ़ लिया अपन ने गीस के बारे में, लेकिन एक चीज़ है, ये लेसन हमारी कॉपी में क्यों दिया गया या किताब में क्यों दिया गया? एक चीज़ बताऊं, वो ये है कि समय रहते जब मम्मी पापा हमें ये कहते हैं ये चीज़ मत करो, ये चीज़ करो, इतना काम जल्दी कर लो, इतना ये काम कर लो, क्यों कहते हैं? ताकि हमें आने वाले समय में कोई मुसीबत ना उठानी पड़े। आई बात समझ में? जैसे ओल्ड बर्ड ने जो है उन गीस को समझाया था कि ऐसा देखो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, आखिर वो मुसीबत में फंसे। तो अगर आपको लगता है कि हम कहीं मुसीबत में फंस गए तो तुरंत अपने पेरेंट्स से बात करो। कहीं स्पेलिंग नहीं आ रही या कुछ भी नहीं आ रहा या सवाल ही नहीं आ रहा, तुरंत अपने पेरेंट्स से बात करके और पूरा काम जो है सही से कर लो। क्योंकि आपका और हमारा भला हमारे माता पिता के अलावा ज़्यादा सही तरीके से कोई नहीं जानता। या तो हमारे टीचर्स हमारा भला जानते हैं या तो हमारे पेरेंट्स हमारा भला जानते हैं। हाँ, किसी से हमने अगर सलाह ले ली है तो वो एक अलग बात है। तो हमें अपने बड़ों की सलाह माननी चाहिए। क्यों माननी चाहिए भाई? क्योंकि उनको ज़िंदगी का अनुभव है, उनको ज़िंदगी का अनुभव है, इसीलिए उनकी बात माननी चाहिए। आई बात समझ में? और आप अच्छे से रहें, और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं ना, करते रहो, क्योंकि ये सारी पढ़ाई देखी जाएगी, देखने के बाद टेस्ट लिया जाएगा। हो सकता हो टेस्ट भी ऑनलाइन ही ले लें हम, आपको नंबर भी दे दें, है ना, और आपके पेरेंट्स की निगरानी में ये टेस्ट हो भी सकते हैं। ठीक है भाई, टीचर्स केवल स्कूल के टीचर्स नहीं होते, मम्मी पापा भी हमारे लिए टीचर्स ही हैं। चलिए, आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए, माता पिता की आज्ञा मानिए और उनके साथ अच्छे से टाइम बिताइए। धन्यवाद।